So students, today we will start NCERT textbook questions. So let us solve the questions one by one. The first question which is given in NCERT textbook is calculate the molecular mass of the following. So we have to calculate the molecular mass of water, carbon dioxide or methane. Okay, so let us find out. So how we can find out the molecular mass of these given molecules one by one we will calculate. So molecular mass of water, that is 2 number of atoms into atomic mass, right? So 2 which is given, its total number of atoms of hydrogen is here 2, or atomic mass of hydrogen is 1, plus number of atoms in the oxygen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. So after adding all these, what we get 18 U, right? I hope this is clear. So likewise we will calculate the mass of all the molecules which is given to us. So mass of CO2, molecular mass of CO2 12. Carbon having 12 atomic mass into one element, which one atom which is given here, plus 2 atom which is present in oxygen, and 16 will be the atomic mass. So after adding this we will get 14 U. Okay, so likewise we will calculate in CH4, 12 into 1 plus 4 into 1, right? So it will be 16 U. I hope this is clear. So let us move to the second question. Calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate. See, हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है. मास परसेंटेज निकालना है. हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, दैट इज सोडियम सल्फेट, राइट? तो सोडियम सल्फेट के जितने भी एलिमेंट्स है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, तो इनके रिस्पेक्ट्स में हमें क्या निकालना है? मास परसेंट निकालना है सभी का. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास परसेंट? सो टू फाइंडिंग द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला इज मास ऑफ द एलिमेंट, राइट? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड. तो मास ऑफ द एलिमेंट मीन्स जोन से भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, या फिर सोडियम ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं हम, या फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं. ओके, मास ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास, इनटू 100. ओके, सो लेट अस सी, कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट? सबसे पहले तो हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, राइट? उसी के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो मोलिकुलर मास अभी हमने निकाला था ऊपर, ठीक है? तो मोलिकुलर मास कैसे निकाल लेंगे सोडियम सल्फेट का? जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके, राइट? तो सोडियम का कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हियर? 2, और जो एटॉमिक मास होता है दैट विल बी 23. तो 2 into 23 प्लस लाइकवाइज फॉर sulfur it will be 32, and for oxygen it is 16, and 4 atoms are present, so 4 into 16, so it will be 142 gram per mole. Okay, so let us find different elements present in sodium sulfate. so हमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, उन्हीं का क्या निकालना है? मास परसेंट निकालना है. ओके, तो हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन का. सो अप्लाई द फॉर्मूला मास परसेंट ऑफ सोडियम. तो सोडियम का जो फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू 100. तो मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ सोडियम कितना हो गया? 46, राइट? 2 एटम्स प्रेजेंट है सोडियम के, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास पूरे कंपाउंड का 142 इंटू 100, राइट? सो व्हाट वी विल गेट? 32.39%. Likewise we will calculate for sulfur, right? For sulfur it will be 32, mass of the sulfur is 32,
divided by molecular mass of compound 142 into 100, so it will be 22.54%. okay, so likewise we will calculate the mass percent of oxygen. So it will be mass of the oxygen is 64 divided by molecular mass of the compound is 142 into 100, that will be equal to 45.07. so this will be the solution of this question. I hope this is clear. Let us see the next question. Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron, 30.1% dioxygen by mass. ओके, सी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ओके आयरन के ऑक्साइड्स का, तो उसमें हमें परसेंटेज गिवन है, तो हमें पता है कि हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो लेट अस डू इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्टली वी विल राइट द एलिमेंट्स, राइट. तो एलिमेंट्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं, आयरन और ऑक्सीजन, राइट. सो एलिमेंट्स आर गिवन टू अस आयरन और ऑक्सीजन. So iron or oxygen we will write first. After that we will write percentage which is given to us. So percentage by mass which is given to us for iron is 69.9% and for dioxygen is 30.1%. So we will write here. Okay, after that we will write atomic mass. So atomic mass is given to us. So for iron it will be 55.85 and for oxygen it will be 16. I hope this is clear. So after that we will calculate the relative number of moles, right. तो relative number of moles हैं जो उनको हम कैसे calculate करेंगे, that will be calculated by percentage. Relative number of moles is equal to percentage by mass divided by atomic mass, right. तो percentage by mass divided by atomic mass. So divide both of these, divide 69.9 by 55.85, we will get 1.25. Likewise we will calculate in this also. So 30.1 divided by 16, so it will be 1.88. I hope this is clear. So relative number of moles we will calculate likewise. So after that we will do simple ratio. okay, तो सिंपल रेशो में हम क्या देखते हैं, जो सबसे छोटा यहाँ पे नंबर होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं. तो इन दोनों में कंपेयर करो, जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 1.25, तो हम इसी को चूज़ कर लेते हैं. तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 वी विल गेट 1, राइट. सो लाइकवाइज 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 वी विल गेट 1.5. So this is the simple ratio, but this is after that we have to find out the simplest whole number ratio, right. जो भी हमारे पास वैल्यू आती है वो whole number ratio में होनी चाहिए. देखो आप, ये 1 है, this is whole number ratio, but 1.5 is not the whole number ratio, right. So we have to convert this 1.25. So how we can convert it, if we multiply both the sides by, in both the terms by 2, राइट. अगर मैं दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 into 2 विल बी 2 and 1.5 into 2 will be 3.0, or you can write 3. okay, so this is the simplest whole number ratio. So by this we will write the empirical formula. So empirical formula for iron, Fe2, right, and O3. So it will be Fe2O3. I hope this is clear to you. So let us see the another question. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फाइंड आउट करनी है. ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नो द रिएक्शन. सो फर्स्टली वी विल राइट द रिएक्शन. सो व्हेन कार्बन बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2. ओके, तो जो ये CO2 है हमें इसकी क्या करनी है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है. कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर. ठीक है, तो जो कार्बन है ये हमें 1 मोल दिया हुआ है, राइट.
So if we see according to the reaction, so 1 mole of carbon, if we see the stoichiometry, right? So 1 mole of carbon burnt with 1 mole of oxygen, it will produce 1 mole of carbon dioxide. I hope this is clear to you, right? So 1 mole of carbon is burnt. तो अगर 1 मोल कार्बन का बर्नट हो रहा है तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो भी 1 मोल ही प्रोड्यूस होगी, ओके। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को सभी को। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है? CO2 की अमाउंट निकालनी है, मीन्स कितनी अमाउंट में CO2 बनी है, ओके। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द मास। अब यहाँ से देखो, अगर हमें मोल पता चल गया, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 मोल है और वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस 1 मोल, ओके। अगर यहाँ से हमें मोल पता चल गया, ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर CO2 विल बी 1, राइट, इट विल बी 1. Mass we have to calculate, and we know molar mass of CO2, that will be 44, right. molecular mass अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो वो कितना हो जाएगा? 44. So if we multiply these, what we will get? Mass of carbon dioxide will be 44 into 1, that will be 44 grams. So 1 mole of carbon on combustion produces CO2, that will be 44 gram. I hope this is clear. Now question is same, but the part is different. What he is asking, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, right. अब देखो, जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या था? कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन ऑल्सो 1 मोल, राइट, एंड CO2 ऑल्सो 1 मोल, ओके। बट अब ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। कार्बन तो 1 मोल ही है, ठीक है, बट जो ऑक्सीजन की अमाउंट है दैट विल बी 16 ग्राम। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कितनी है? 16 ग्राम, ओके। तो हमें CO2 की अमाउंट निकालनी है। तो अब ये हमें मास दिया हुआ है, तो मास अगर हमें दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स, अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास, mass divided by molar mass. So from here we will calculate number of moles. So for oxygen, mass is given, that is 16 gram, right, and here molar mass of oxygen will be 32. 16 into 2, that will be 32. So it will be 0.5 mole. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हमारे कितने आ गए? 0.5 मोल, राइट। अब आप देखो, ये 0.5 मोल जो कंप्लीट रिएक्शन थी वो थी 1 मोल ऑफ कार्बन जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ CO2 देगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना रहा है? 0.5. इट मीन्स इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, लिमिटिंग रिएजेंट है। और आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट पे ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है। और जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा? बच जाएगा जब भी रिएक्शन होगी। सो इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आप देखो कि जब 1 मोल ऑफ कार्बन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी कितनी बनेगी हमारी? 0.5 मोल, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो जो CO2 प्रोड्यूस होगी, राइट, जो CO2 प्रोड्यूस होगी यहाँ से निकालो आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, राइट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, राइट, सो दैट विल बी 0.5 नंबर ऑफ मोल्स 0.5। और CO2 के लिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होता है? 44। सो इट विल बी 22 ग्राम,
Okay, so I hope this is clear. So likewise, the next part is given 2 mole of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. तो 2 मोल ऑफ कार्बन के कितने के साथ बर्न हो रहे हैं? 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. ओके, लेट अस सी द रिएक्शन. देखो रिएक्शन ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, राइट. सो पहले 1 मोल जब कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो 1 मोल ही बना रहा था, राइट. बट इसने बोला है 2 मोल ऑफ कार्बन. अब अगर हम कार्बन के 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 16 ग्राम. अगेन 16 ग्राम. तो 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे? 0.5, राइट. फिर जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को 1 मोल ऑफ कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तभी हमारे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट. अब जब 2 मोल ऑफ कार्बन गिवन है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए? 2 मोल होनी चाहिए. बट है कितनी? 0.5. इट मीन्स ये क्या है? हमारी लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे भी, ठीक है. तो और हमने अभी पढ़ा है, दिस इज सेम एज द अबव पार्ट, कि जो लिमिटिंग रिएजेंट हैं, ठीक है, उसी पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो हमारी डिपेंड करती है, ठीक है. अगर ये 0.5 है ऑक्सीजन, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो भी कितनी होगी? 0.5. गोट इट. तो सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए यहाँ से. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें यहाँ से मिल गए हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मास है वो हमें पता ही है, ठीक है. जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है वो हमें पता है. तो यहाँ से हम क्या उसकी अमाउंट निकाल लेंगे, दैट इज़ द मास. सो फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. सो N हमारी पास जो वैल्यू है वो है 0.5, ठीक है. और जो हमारा मोलिकुलर मास है इसका वो कितना है? 44. सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 22 ग्राम. I hope this is clear to you students. Practice these questions.